ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 12ରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି। ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଏସ୍ଆର୍ସି ଶ୍ରୀ ରାଜେଶ ପ୍ରଭାକର ପାଟିଲ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେରେ ଯାଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରିକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 3ଟି ବ୍ଲକ ଦଶରଥପୁର, ବରୀ ଏବଂ ବିଞ୍ଝାରପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀପୋଖରୀ ଓ ଚାନ୍ଦବଲି ବ୍ଲକ 3ଟି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସୋର, ରେମୁଣା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଏବଂ ତା ସହିତ ଉଦଳାର କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶ ଦେଖିବା ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରର ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ନଦୀମାନଙ୍କରେ ପାଣିର ଯେଉଁ ପ୍ରଖରତା ଏବେ କମିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନଦୀର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାହା ସୁଧାରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ଏହା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରି ଏ ବନ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 2,69,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭାକୁଏଟ୍ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଇଥିବା 17ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, 7ଟି NDRF ଏବଂ 129ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଜରୁରୀ ସେବା ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 700ଟି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରରେ ରିଲିଫ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ବି ତଦାରଖ କରାଯାଉଅଛି। ରିଲିଫ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ବା SDRFରୁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, ଔଷଧ ଏ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଆମ ସରକାର ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଯଥା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛୁ। ଏବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଉପକ୍ରମ କରୁଛି। ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାର ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ରିପୋର୍ଟ ବନେଇବେ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ବନେଇକରି ସେ ସରକାରକୁ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ବିଶେଷ କରିକି ଆକଳନ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଯିବ। କୃଷି, ଘରଭଙ୍ଗା ସହାୟତା ଉପରେ
आम सरकार पूरा गुरुत्व दे आसुचंती एवं गुरुत्व मध्य देबे एवं जो बन्या परिस्थिति कारण जोठी घाई सृष्टि है परवर्ती पर्यायर रोड मध्य कोठी दबी जाइछि किंबा भांगी जाइछि से रोड गुड़िकर तुरंत रिपेयरिंग बा मरामती करा जिवो सेथिपाई संपृक्त विभाग अधिकारी मान को निर्देश दिया जाइछि एवं इंजीनियर मान को मध्य काम करिया पई समान को परामर्श दिया जाइछि। एणु आगामी दिन में जेतेबेले स्वास्थ्य परिस्थिति हुए तो आसी पारे बन्या परे किंबा साइक्लोन परे जमिति परिस्थिति गोटे आसे ताकू भी नजर रे कड़ा रखा जाइछि। बन्या परवर्ती परिस्थितिर ताकू केमती मुकाबला करा जाई परिबो रोग कौन प्रकार जमती लोक पाखरे एक बड़ जोठी डायरिया किंबा आपंकर अन्यान्य जो रोग ये न पहुँची पार से सरकार संपूर्ण भाव में सतर्कता अवलंबन करी काम करुछंती। मु आशा करी एथर बन्या परिस्थिति शीघ्र शीघ्र आसला परे मध्य बहुत क्षति घटेला परे माने बहुत बड़ फ्लोरे आसला परे मध्य सतर्कता अवलंबन सरकार तरफ करा जाइथिबारु सूचना ठीक समय समस्त को प्रदान करा जाइथिबारु संभवतः यह को आमे आज गोटे प्रकार एड़े देइछु माने बड़ जो भयंकर क्षति हेबा परिस्थिति बर्तमान एड़ा जाई पारिछि एवं एबे मध्य महानदीर पानी तलमुंडारे आसिकी पहुँचबारे लागिछि। जहाँ रिपोर्ट आम पाखरे अछि जे नदी रे जेतिकी पानी फ्लो जाउथला से भी कमिबा आरंभ करिछि। एणु साधारणतः भाव में दया नदी भार्गव नदी कुशभद्रा नदी एवं एमानंकर अफेक्टेड एरिया जो अच्छी विशेष करी पुरी कणास ब्लॉक ये सब अंचल मानकरे मध्य तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि। से प्रकार बड़ धरनर परिस्थिति है लागू ना तथापि सावधान सहित समस्त प्रकार आनुषंगिक व्यवस्था सहित जिला प्रशासन एवं आमर एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम को सजाग रखा जाइछि। फायर टीम पूरा संपूर्ण भाव में से प्रस्तुत होकर अच्छा और निश्चित भाव में जो परिस्थिति आसो ताकू समाधान तुरंत त्वरित पर्यायर इमरजेंसी ताकू समापन करा जिवो एवं निश्चित भाव में ये बन्या परिस्थिति को मुकाबला करबा पई एवं तार बन्या परवर्ती पर्यायर किभली भाव में चाष कार्य को आउ थे जो जगार संभव अच्छी जो जगार पानीर स्तर कमी जीव से सबको दृष्टि रखिक सरकार उभय राजस्व विभाग तरफ आकलन कला परे कृषि विभाग को मध्य निर्देश दि जाइछि समाने ताहार कृषि क्षेत्र में को जगार पुनर्बार आउ थे कृषि कार्य से चाषी मान संपृक्त से काम में लगे पारे से सरकार संपूर्ण भाव में या नजर रखिछंती। धन्यवाद। आपण एबे आसले सर टिके अपेक्षा करंतु आपण एबे आसिक बसिले मु कौन कहली शुणी ना टिके टिके आप बसंतु दया करी तापर कहिबे। देखंतु ये बाबद राजस्व मंत्री आपण मानकर पाखरे प्रायतः अनेक थर मंतव्य देइछंती बाइट देइछंती प्रेस मीट भी करिछंती एरियल सर्वे रे भी मो आगु जाइथिले यार निश्चित भाव में ए विषय जानी एथिरे जेते बेले आपंकर सरजमीन तदंत आकलन करा जिवो सेते बेले जाइकरी जना पड़ियो प्रकृत रे को पंचायत रे केते प्रभाव पड़ी। एबे एरियल सर्वे हम देखिलु पानी जमी जाइछि पानी जमीमा द्वारा भी संपूर्ण भाव में जना पड़ू नाही पानी कमी गलानी किंतु जे पर्यंत एरियल सर्वे देखिला परे मध्य जे पर्यंत आमे ताकू आमर अधिकारी मानकर द्वारा रिपोर्ट न आसला पर्यंत आमे ताकू स्पष्ट भाव में एबे कहिबाटा संभव नुह। एणु स्पष्ट भाव में रिपोर्ट आसला पर ही कहा जाई परिबो सेतिरे कोनसी प्रकार आपण मान को कथा रखा जीव नाही। बन्या परिस्थिति बात्या परिस्थिति मरुड़ी परिस्थिति ओडिशार चिर आमर सहचर बंधु होइतिबा कारणरू आम शत्रु बोली भावुनु ये चिरतर बंधु सहचर बंधु होइतिबा कारणरू निश्चित भाव में जो परिस्थिति आसो ताको मुकाबला करिबारे
राज्य सरकार संपूर्ण तत्परता प्रकाश करुथबारु एथिरे संपूर्ण तथ्य आगामी 3 दिन पर आपण मानकु स्पष्ट चित्र मिल जाई परिबो एवं ताहार परवर्ती कार्यक्रम कोन रहइबो ता भी स्पष्ट भाव आपण माने जानि परिबो। रिपोर्ट न आसिला आपण केमति कहि परिबे रिपोर्ट ए रिपोर्ट केते क्षयगति आकलन हेछि कोन हेछि एथिरे संपूर्ण भाव रे हमर रिलीफ कमिशनरनकर रिपोर्ट जहाँ तांको पाखकु आसीबो राजस्व मंत्री ताकू रिपोर्ट बनैबे एवं राज्य सरकार पाखरे थोइबे तापरे द्वार तो खोला अछि उन्मुक्त अछि। आमे अतीतरे मध्य केवल हेवी रेन हेले मध्य आमे जाकि रिलीफ कोड रे नाही रिलीफ कोड रो परिवर्तन करिकरी हेवी रेन कारण जेतिकी हमर शस्य क्षति हेइतिला ताकू मध्य आम सरकार देवारे पछै नांती आम सरकार प्रथम थर करे पई समान को साहाय्य करिसंती एनो चाषी को संगरे आम सरकार अछंती जेकोसी दुर्विपाक दुर्घटना जहाँ भी परिस्थिति आसिले चाषी को संपूर्ण सहयोग करिया पई सरकार प्रस्तुत अछंती अपेक्षा करंतु संपूर्ण आकलन आसीगला परे आमे आपण मानकर पाखरे एक कथा रखिबु एवं रिलीफ स्पेशल रिलीफ को टाइप रो आमे प्रदान करबु आपण मान को निश्चित भाव जणाइबु। तो हिंदी में क्या होगा वो तो प्रश्न पूछ दिए। ठीक है थोड़ा सा मैं उड़िया को खत्म करें। मु गतकाली दिल्ली रु 3 दिनिया गस्त सारिकरी फेरी एथिरे विशेष करी मुख्य विषय थिला जो राज्य सरकारंकर महानदी जल विवाद उपरे ताहा किभଳି भाବରେ आम सरकार समय समाधान करा जाई पारिबो सेथिपाई केंद्र सरकार निकटरे माननीय केंद्र गृहमंत्री निकटरे ए कथा को बारंबार उपस्थापना मु करी आस्थिली एवं गत 30 तारिख दिन केंद्र जलशक्ति मंत्री श्री CR पाटिल अध्यक्षतार मो सहित उपस्थित थिले छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तांकर पूरा टीम थिले चीफ सेक्रेटरी सहित आम सरकार चीफ सेक्रेटरी सहित पूरा टीम सेठी उपस्थित थिले। बैठक में सौहार्दपूर्ण भाव में आलोचना आरंभ हेछि एवं सेथिरे आलोचना भितरे बैठक में ओडिशार जनसाधारण स्वार्थ अधिकार एवं चाषी कूलर संपूर्ण हित एवं किभଳି भाव में संपूर्ण भाव में आम परिवेश को सुरक्षित रखा जाई पारिबो एवं सेथिपाई एक स्वतंत्र पंथा बाहरिबो रास्ता बाहरिबो ताहा उपरे मु मोर मत स्पष्ट भाव में केंद्र सरकार उपरे रखिछि। सेंट्रल वाटर कमिशन को अध्यक्षतार एक टेक्निकल टीम गठन करा जाउछि एवं से टेक्निकल टीम आसंता 3 मास मध्यरे ये टाइम टू टाइम से माने ऑफिशियली बसिबे आलोचना करिवे एवं जो थे कि ये 3 मास मध्यरे जो महानदी ट्रिब्यूनल अच्छी से ट्रिब्यूनल रे तांकर रिपोर्ट को मध्य से माने उपस्थापना करिवे एवं एथिरे जो आलोचना हला एवं सेथिरे छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से भी एक सकारात्मक भाव में सिग्नाल देइचंती आलोचना रे मत देइचंती जे केंद्र सरकार मध्यस्थतार जो आलोचना हबो जो निष्कर्ष बाहरिबो सेतिरे उभय राज्यर स्वार्थ को रखिकरी समाधान करिवार सूत्र बाहर करा जाऊ आ ताहा निश्चित भाव में एथिरे सहमति हेइछंती। माननीय केंद्र जलशक्ति मंत्री मध्य आम उपर स्पष्ट चित्र रखिले जे कौन सी राज्यर स्वार्थ को बड़ी दिया जीव नाही स्वार्थ को गुरुत्व देई केते जल कहार व्यवहार करिवार रखिबार क्षमता
जलसेचन करिवार क्षमता एवं परिवेश को सुरक्षा देवार क्षमता को रखिकरी समाधान करा से उपरे स्पष्ट भाव में तांको चित्र से रखिछंती एवं सेंट्रल वाटर कमिशन निश्चित भाव ये उपरे 3 मास भितर तांकर रिपोर्ट बनेला परे मु आशावादी अच्छी निश्चित भाव में ये गोटे समस्या दीर्घ 10 वर्षर समस्या ये समाधान हो पारिबो एवं सेथिपाई आसंता जो मु कही दिल्ली रे मध्य जे आसंता दीपावली उत्सव बा पर्व निश्चित भाव में आम एक शुभंकर हम आ से अपेक्षार ओडिशावासी निश्चित भाव में एथिरे गोटे भल रिजल्ट बा फल मिलबार संभावना अच्छी एणु ता उपरे यथेष्ट केंद्र सरकार उपरे एवं छत्तीसगढ़ सरकार उपरे मध्य आम भरोसा रखी ये कार्यक्रम को आगक नौ। धन्यवाद। वहाँ हिंदी वाला है तो आज मैं आकाश मार्ग से 5 जिलों में बाढ़ स्थिति का अनुध्यान करके अभी लौट आया हूँ। मेरे साथ हमारा राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी जी और एसआरसी वहाँ उपस्थित थे, मेरे साथ थे। इन सभी क्षेत्रों के बहुत सारे गांव पानी के घेर में अभी भी है। अभी स्थिति सुधार रही है। 1-2 दिन के भीतर नॉर्मल स्थिति पर आने वाले हैं। जो जिस तरह से बाढ़ का परिस्थिति पर नज़र सारी अधिकारियों को अभी तक भी बुलाया गया कि आपने पूरा नज़र रखें और मंत्री स्तरीय अधिकारियों को भी बोला गया कि जब पानी कम हो जाएगा, पानी कम होने के बाद ही 3 दिन का अंदर आकलन करना है। जो खेतीबाड़ी जहां हुआ था कितना नुकसान हुआ, क्या परिस्थिति है शस्य का, पशुधन का, उनके साथ साथ और भी जो रोड सेक्टर में कहीं भी क्या परिस्थिति खराब है उसके ऊपर आकलन करते हुए वो रिपोर्ट एक बार एसआरसी के पास आ जाने से बाद फिर रेवेन्यू मिनिस्टर उसके ऊपर रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार के पास आ जाएगा और आने के बाद ही हम डिक्लेयर करेंगे ही क्या क्या जा सकता है। इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम को पहले से ही हमारा डिपार्टमेंट ने और रेवेन्यू मिनिस्टर एसआरसी तरफ से जैसे सूचना पहले से ही दिया गया, इसी आधार पर एवाकुएट किया गया और एवाकुएट में ही कई आसपास 2,80,000 लोगों को एवाकुएट किया गया, सुरक्षित स्थान पर उनको लिया गया, पशुधन को भी लिया गया। इसी आधार पर हमने जो हमारा प्रावधान है कि 0 कैजुअलिटी, इसके आधार पर हमने करने से निश्चित रूप से वो बहुत बड़ा हमको एक रिजल्ट भी मिलने लगा और इसी आधार पर हमने सारे कामों को अच्छा ढंग से मैनेजमेंट करने के लिए हमारा जो एसडीआरएफ का टीम 26 करोड़ उनको भी हमने 26 करोड़ रुपया प्रदान किए थे और क्षतिग्रस्त परिवार को पॉलीथीन, ड्राई फ्रूट, कुक्ड मील, पीने के लिए पानी, औषध, मेडिसिन सारी व्यवस्था हमने किए थे और निश्चित रूप से इसी आधार पर सबको सेवा मिलने के लिए हमने पहुंचाने के लिए उनके पास पहुंचाने में अधिकारी को निर्देश दिया था। कहीं कहीं भी आपका मीडिया तरफ से भी जो हमको मैसेज मिला, कहाँ हमारा अधिकारी नहीं पहुंचे लेकिन आपने पहुंच गए और उनके रिपोर्ट बना के टीवी में छोड़ दिए तो हमको भी पता चला कि हम नहीं पहुंच पाए तो टीवी भी पहुंच गया। इसी आधार पर भी हमने तुरंत अधिकारी को वहाँ जाने के लिए बोला और वो भी रिपोर्ट बना के दे दिए ना हो, वहाँ जो भी व्यवस्था सामग्री पहुँचना है वहाँ पहुँचाने के लिए भी हमने कोशिश की है और इसी आधार पर निश्चित रूप से हमने जो आकलन का टाइम 3 दिन रखे हैं
3 दिन के बाद की जो रिपोर्ट आएगा SRC के माध्यम से और राजस्व मंत्री उनको आकलन करने के बाद ही सरकार के पास जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हमारा पैसा की कोई कमी नहीं है। रोड सेक्टर हो या एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी का जो भी नुकसान हुआ अभी भी क्या किया जा सकता है, इसके आधार पर एग्रीकल्चर मंत्री जी को भी हमने निर्देश किए हैं कि थोड़ा कहीं भी अभी भी हम फिर पुनर्बार हमने खेती का काम कर सकते हैं और रोड सेक्टर जहां टूटा हुआ है उसको हम पूरा रिपेयरिंग करेंगे। सारी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। रिपोर्ट 3 दिन के आने के बाद ही निश्चित रूप से हमें सारी व्यवस्था धीरे धीरे करेंगे और क्या स्पेशल हम करेंगे नहीं करेंगे वो तो रिपोर्ट का आने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए कोई घबराहट ना होते हुए सारी प्रभावित अंचल का जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको हम मैसेज देना चाहता हूं कि आपका जरिया से कि आप निश्चित रहें, सारी व्यवस्था सरकार नज़र भी रखे हैं और व्यवस्था भी कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।